for presenting the budget in Parliament. और अब देखिए निर्मला सीतारमण खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रही हैं अपने साथी मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ, बजट के डिटेल्स बताने के लिए, मीडिया के सवालों के जवाब देने के लिए। सुनिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। I welcome Finance Secretary Dr. Ajay Bhushan Pandey, Secretary Expenditure Sri T.B. Somanathan, Secretary Financial Services Sri Devashish Pandey, Secretary Economic Affairs Sri Tarun Bajaj, Secretary Deepam Sri Tuhin Kant Pandey, Chief Economic Advisor Dr. K.V. Subramanian. First, the Finance Minister will make her opening remarks, then we will take some questions from you friends. Ma'am, over to you, please. Thank you and good afternoon. This budget, of course, comes at a time when all of us desire to give greater impetus to the economy. And that impetus we thought would be qualitatively spent and give the necessary demand push if we choose to spend big on infrastructure. That is why if there are two important features of this budget, it is that we chose to spend big on infrastructure, which spans across roads, bridges, ports, power generation, and so on. And also to, as a second feature, attend to the need of the health sector. And even there, capacities for better health management had to be brought in the light of what we have gone through in the last year. And therefore, capacity building in health has taken a very big place in the budget. I've just given a probably just a feeler on what capacities we are talking about, whether it is establishing of labs, whether it is establishing of National Institute of Virology, or whether it is looking at the blocks where you need critical care centers, or whether you're looking at testing labs. Let's just remind ourselves that when the lockdown happened, we had probably just a few, two, if I'm right, 2 or 3 testing labs in this country. During the lockdown, that number was increased to a couple of hundred. Now, therefore, one of the things that we've aimed here is testing labs, Institute of Virology, aspirational districts having better health care. So, infrastructure spend for health has gone down to the level of planning for the block level requirements, aspirational district level requirements, state level requirements, and national institute level requirements. So 2 features when I said are, one in general spending on infrastructure, for which there is a 37% increase in the budget. 5,45,000 crores is what we are giving for this year. And health, it was also something which received something like 94,000 crores in BE of this year, has gone to 223 lakh crores. So you find big numbers in health, big numbers in infrastructure. But this doesn't really mean that we've ignored agriculture, where there too we have placed emphasis. I've increased, as I read it out in the budget, the allocation for NABARD for being able to send more credit through to the farmers.
Agricultural infrastructure development cess is something which we are bringing in without on any one single item wherein we are putting the cess, the end consumer paying more than what he is paying today. It is just a restructuring we've done, for instance, of the basic customs duty, where it was, let us say, 12%, we brought it down to 7% and added possibly only 3% on the infrastructure development cess. End of the day, the consumer has ended up paying that much only or less. In no category has he ended up paying more after the agricultural infrastructure development cess. That we have done only because we wanted to be sure that in order to improve agricultural infrastructure, we have a dedicated amount coming out of the budget, rather than that going into the consolidated fund. It might still go, but we know what has got to be used for agricultural infrastructure. So if these are the kinds of things broadly we've done, equally important is the reform that we're bringing in the financial sectors. Disinvestment to continue, LIC to have IPO, insurance sector to have more in terms of opening up for 74% for FDI. तो वित्त मंत्री फिलहाल मीडिया से बात कर रही हैं और संसद में तो एक लिखी हुई स्पीच पढ़नी पड़ती है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर विस्तार से चर्चा भी होती है, मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। वही इस समय चल रहा है, जाहिर है अंग्रेजी में हो रहा है। आपको एक एक करके न्यूज़ 24 की स्क्रीन पर जो कुछ निर्मला सीतारमण बता रही हैं इस बजट के बारे में वो बताते रहेंगे और आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, वो भी आपको हमारी टीवी स्क्रीन पर एक एक करके मिलते रहेंगे। अमिताभ जी, हम जानते हैं हर बार बजट में क्या रहता है, जब से जीएसटी नहीं आया था उससे पहले हम लोग ये जानने का इंतजार करते थे क्या सस्ता हो गया क्या महंगा हो गया। जीएसटी आने के बाद वो तो काफी हद तक खत्म हो चुका है, सिर्फ जो विदेश से इंपोर्ट की जाती हैं चीजें उन पर असर पड़ता है थोड़ा बहुत। तो इस बार उस लिहाज से तो बहुत ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, क्योंकि कीमतों के दाम जो चीजें की कीमतें वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी जो मोटा मोटा है उसको एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके दामों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस बजट के बाद भी होने वाला है। जैसे इस बार, जैसे मैंने पहले बताया, ऑटो पार्ट्स पर 15% की ड्यूटी बढ़ाई गई है, तो ऑटो पार्ट्स महंगे हो जाएंगे, तो जाहिर है गाड़ियों के दाम बढ़ जाएंगे। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, अल्कोहल, शराब क्योंकि जीएसटी में नहीं है, फुटवेयर, गोल्ड, सिल्वर, सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मोबाइल के दाम बढ़ने वाले हैं क्योंकि 2.5% वहाँ भी ड्यूटी बढ़ाई गई है। केमिकल्स हैं, कार्स हैं, तंबाकू, इन सब की चीज़ें जो जीएसटी में नहीं है, जाहिर है उन सब की चीज़ों पर कीमतों में इस बार असर पड़ रहा है। तो वो न्यूज़ 24 की टीवी स्क्रीन पर एक एक करके हम बताते रहेंगे। सबसे ज़्यादा असर जो पड़ने वाला है वो गाड़ियों पर पड़ने वाला है। ऑटो पार्ट्स पर 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, वो 15% हो गया है, तो गाड़ियाँ आपकी महंगी हो जाएंगी। मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% बढ़ाई गई है, तो मोबाइल फ़ोन महंगे हो जाएंगे, चार्जर महंगे हो जाएंगे, हेडफोन्स तक महंगे हो जाएंगे। सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है, 7.5% की गई है, इससे ज्वेलरी थोड़ी सस्ती हो जाएगी। स्टील प्रोडक्ट्स इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है, 7.5%, सस्ता हो जाएगा। तांबा इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है, 2.5%, सस्ता हो जाएगा। और कुछ लेदर हैं, चुनिंदा लेदर है, सारे नहीं, कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, लेदर प्रोडक्ट्स भी इससे सस्ते हो जाएंगे। तो अमिताभ जी, कुल मिलाकर अब जबकि हम सस्ते महंगे की बात कर रहे हैं, जीएसटी आने के बाद अभी भी बहुत सारी चीज़ों ऐसे हैं जो जीएसटी से बाहर हैं, और ये डिबेट आपको लगता है इस बजट के बाद एक बार फिर से जोर पकड़ेगा कि कुछ चीज़ें अभी बची है उनको भी जीएसटी में लाइए? पेट्रोल डीजल तो एक है ही एवरग्रीन टॉपिक। नहीं, आपने ब्रेक में जाने के पहले एक और सवाल रेज किया था कि शेयर मार्केट में जो 2700 पॉइंट का जो उछाल आया है, आप उसको कैसे देखेंगे इस बजट के साथ में? मैं बताना चाहूँगा कि जिस क्वार्टर में हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेट 23% नेगेटिव हुआ, दूसरे क्वार्टर में 7.5% नेगेटिव हुआ, उसी पीरियड की बात कर रहा हूँ, 4-5 महीने में $25 ट्रिलियन का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुआ। फिक्स एफडीआई नहीं था, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन
विदेशी हालत इतनी खराब है कि वो इंडिया को एक सेफ पार्किंग प्लेस समझते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होने की बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी का डेफिनेशन को हमको क्लियर करना पड़ेगा। अगर हम ये बहुत सारे डेफिनेशन वैसे हैं, लेकिन अभिजीत बैनर्जी जो नोबेल लॉरिएट है, उन्होंने कहा कि $5 प्रतिदिन से ज्यादा जो खर्चा करता है, सब कुछ मिला के, एजुकेशन, हेल्थ, सबको मिला के $5 प्रतिदिन, वो मिडिल इनकम है। उसकी प्रतिशत 2011 में 4 थी, अभी 9% करीब हुई है। 35% लोग ऐसे हैं जो इसके नीचे हैं। मैं समझता हूं इस बजट में मध्यम वर्ग पर फोकस तो नहीं है, ये सही है, लेकिन ये जो लोअर जो 30% 35% जो है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गुंजाइश है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कृषि के क्षेत्र में कि क्या ये वाकई दिल, इस बजट का दिल गांव में है, उस पर मुझे थोड़ा सा और कैलकुलेशन करने की जरूरत है, क्योंकि हमने ये बताया नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना हिस्सा रूरल एरिया में जाएगा, और अगर जाएगा तो क्या बड़े बड़े शहर ही बनेंगे जिससे बड़े बड़े शहर लिंक होते हैं, या रूरल एरिया में लिंकेजेस बढ़ाने की बात की जाएगी, एपीएमसी की बात की। लेकिन तुमको ये बताना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है फार्मर्स ये वेट कर रहे हैं कि जो प्राइमरी कोऑपरेटिव्स हैं उनको हम फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाएं। 10,000 ऐसे बनाने की बात की जा रही है, जिससे ये फियर जो है ना कि प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर हमें दबोच लेगी, उसका हम निकल सकते हैं। तो सरकार अगर रोड मैप बना के देती कि नहीं साहब, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर को एम्पावर करें, वो खुद कंपनी के मालिक होंगे, वो नेगोशिएट करेंगे। मुझे लगता है ये बहुत ऑलराइट। ओके, एक ब्रेक लेना है, लेकिन यतींद्र खेमका भी आ गए हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, और पंकज पहले से बैठे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से, क्या आपकी जेब पर टैक्स के मामले में, इनकम टैक्स के मामले में कोई असर पड़ने वाला है, ये बताएंगे आप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।